artificial intelligence in attaining sustainability. So AI is the buzzword. Every one of us knows it, and we are from different streams, as I learned looking at the list yesterday. We are into the refresher course where there are students from every teachers, in fact, wonderful teachers from wonderful universities, but from various domains. So we'll be keeping it very simple. We'll be discussing it uh, with regard to AI, and then see what smart cities are. And then we'll also talk about the dream of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who is emphasizing on smart cities, the development of 100 smart cities. So how environment is going to be the will play the crucial role. We have another session on 21st about role of AI in environmental sciences. So that is going to be another session which would be very much linked to this one. So let us start this sustainable smart cities, the role of artificial intelligence in sustainability. And as I said, collaboration word, we are having two very big projects right now from Saudi for smart water management and smart healthcare. And they are taking our help, they are taking our expertise. So that is the word where I said collaboration would be very important. So I am Dr. Ehtaram Raza Khan. I'm representing Jamia Hamdard from Delhi. So before we get into the discussion, in the main discussion, we let us see what artificial intelligence is. There will be many people who will see it for the first time. There will be many people from computer science who are enrolled here, who must have seen it every day, who see it every day. So AI is a field in computer science which deals with creating machines intelligence. So we are looking for intelligent machines. So when we are looking for intelligent machines, AI is the word. In other words, we can say that intelligence exhibited by softwares or machine is termed as artificial intelligence. We all are using AI in our lives. Alexa is a household name now. Everyone is using Alexa. You see our kids are playing with Alexa. Alexa, play a song. Alexa, open my door. Alexa, do this. Alexa, do that. Alexa, do my tell me what is 2 plus 2. So this is all the word is AI, artificial intelligence. We are all talking about self-driving cars. And in metro cities, if you see, we can see there are so many cars being driven, self-driven cars are there. So that is again the part of artificial intelligence. We go for shopping. We just plan to have a shopping day, and you see on your screen, in your laptop, on your mobile, you see so many advertisements popping up through the recommended systems, where you was looking at different options, like my laptop is going to cost this much for Lenovo, for HP it will cost this much. So you have so many options to shop, you have so many options. Managers, they're sitting on their terminals, they're sitting on their dashboards, taking the help of artificial intelligence. And leave aside, you must have seen in your colleges, you're from big in the colleges and universities, you must have seen that the HRs who are coming for the placements, they are making use of artificial intelligence. They are sitting on the systems, they're looking at sentiment analysis, they're looking at different parameters. Themselves, they are mining through the social media and getting the feedback about the students. So students who are making some rowdy statements on the internet or sentiment analysis, they're showing various sentiments on the internet in a negative way, those students are outrightly rejected by the HRs. So AI is going to play a very big role, whether it's the industry or it's a college or anywhere. It's going to be AI that is going to be making a wave. So it's an important technology nowadays. It supports our daily social life and economic activities. Smart cities that we are talking about will use data sensors, actuators, smart devices, wireless communication to generate and gather big data. So smart cities are going to be using data sensors. So imagine a movie from Hollywood, and you see a car driving down the lane, stopping at the building, and the building gate opens up as the person steps inside.
the automatic lighting system is there, the AC gets on, and every device that is there, they are having sensors and they are getting activated. In India also, there are IIT students who are collaborating with the infrastructure companies, and now you find smart homes even in our metro cities. Even in Ghaziabad, Noida, we have seen that they are coming with the smart homes. The smart homes would mean that they are making the concept, using the concept of artificial intelligence along with different kinds of sensors and all. So the basic part here is AI is going to take the life by storm, and this storm has to be understood before we get along with it. So handling big data generated by smart cities can be best utilized by implementing and using artificial intelligence. So it's a time when we are talking about big data also. We are no longer talking about a floppy drive, take your data on a floppy drive, take your data on a pen drive. Now we have so much of data coming from the social networks, from internet, from different sources. There's so much data is coming in that our floppy drives are not sufficient, our pen drives are not sufficient. So we are moving towards the cloud. So cloud is giving us the solution. So handling big data. So this big data is a word where whatever data we are talking about now, it's big data and it is generated by the smart cities. It can be utilized by implementing and using artificial intelligence. So the data that we're talking about, as we'll discuss during the slides, is big data and it's handled by AI algorithms. So AI algorithms plus the data handling, proper data handling of it, and we get the best of solutions. So that's what we are looking for in sustainability. Uh, uh, 6 months back, or 5 or 6 months back, we had Chandrayaan landing, perfect landing of Chandrayaan on the moon. And that was facilitated by the use of AI algorithms only. Precise data. They were making use of, scientists were making use of big data. They were making use of AI algorithms. And you see where all other countries failed, but India uh, succeeded in it because we were able to better utilize our AI algorithms and we were able to better handle the data that we are talking about. So it's about handling the algorithms in a proper way, and our scientists know, our technocrats know how to handle it. So this is where India is taking the edge in the world. AI can process and learn from this big data and bring about inferences which can further be used to make smart cities more efficient and resourceful. AI can be used to predict failures, usage patterns, demand ratio of resources, as well as infrastructure. So as we'll see in the slides, AI can tell you about predict the failures. As we say, there are so many things failing. You must have seen, or every one of us watches cricket. Now they're using AI in cricket analysis. You see the ball will deviate this much, the ball will spin this much, and you see India is winning on a trot because the coaches and all, they are making perfect use of AI algorithms. So AI is the word which is going to be coming in our lives. So deployment of AI in smart cities will be a daunting task. So it's going to be a daunting task and it's taking time also. You would say we were planning 100 smart cities and then we can name 8 to 10 smart cities in India, and then the rest are still, the work is on. And it's in tits and bets, but we are moving ahead. So deployment of AI in smart cities will be a daunting task. Challenge is that of AI resources and powers are limited to few companies are there which are totally having the complete control of it. Microsoft, Google, Facebook, and different Twitter and all. They are having the complete control of it, of the resources. So what about the startups and all that are coming up, small startups? How will they get the resources? So these are the challenges that we'll be discussing. So these are the challenges that we have to discuss today. And these challenges are being countered with the use of, let's say, collaboration. We'll collaborate with someone who can give us the resources and take our expertise, take our intelligence. So our intelligent minds are working on those resources. And that's where I said I have two Saudi projects which are there on smart water management, healthcare, and they want us to give the expertise, and we are there as co-PI and PI. We are working on those projects. I'll discuss more about that. So
Universities and educational institutions should fast track AI courses and put in efforts in the field to get a better workforce and AI systems. So, now whose responsibility will it be to make AI popular, to make AI popular in social life, in EVS, environmental sciences? How do we make AI popular? Now, the responsibilities will definitely be on the universities and educational institutions who should fast track AI courses. Now, there are courses, there are certificate courses, and we see that we are really working hard on it. Most of us must be knowing about SWAYAM, the MOOC courses run by SWAYAM. There are so many courses there. Then we have the international MOOCs like Udemy, like Coursera, and all. They are having different AI courses where we teachers, the students, the scholars, they are all working on those courses, learning more. So just studying the curriculum part of it, BTech or MTech or MCA courses will not be sufficient. So we must be doing some certificate courses. So that's where these MOOC courses are very important. Udemy, Coursera, our Indian SWAYAM. So universities and educational institutions should fast track AI courses and put in efforts in the field to get a better workforce and AI systems. Simple AI systems we should get. And these are the efforts. That's why these courses are being covered in your refresher courses. Refresher courses, so many teachers attend it because we need points for our CAS, we need some study part of it. We want to enhance our skills. So why not introduce these kind of topics in our refresher courses and orientation programs? So this is why we are talking about artificial intelligence and smart cities and sustainability and new education policy and all. We are talking about in these programs. So this is the basic layout. We want to make it popular, and we want to handle and see that AI reaches the root of the nation. So universities and educational institutions will have a very big role in the coming time also. They are doing a wonderful service. Almost every university now, every college, they have their IIC cells, incubation centers. Never we have heard about incubation centers and these IICs and all before. But now that we are on a path of going towards becoming a wish guru. It's a dream of our honorable prime minister to become the wish guru. And if you have to become the wish guru, AI, where AI plus blockchain plus IoT plus the converging technologies of artificial of IT, ICT will have to be taken in our daily life. And that's why we are covering these courses in these refresher programs. So it's the responsibility of institutions, educational institutions and universities. In the future, AI should transform into a utility available to all. We are talking about sustainability. We are talking about sustainable solution for everyone. Good education for everyone, whether he's rich or poor. Good education should reach everyone. Our medicines, our healthcare should reach everyone. It's not like a poor country should not have healthcare resources and only the rich countries should have. No, the 2030 goals set up, sustainability goals set up by UN would mean that everyone is equal. It's sustainability, solution for everyone. So we want the solution for everyone. That's why I started the session with collaboration. So this collaboration word would mean that AI will be transformed into a utility which will be available for all, whether rich country or the poor country, rich people or the poor people or the moderate people. It will become as normal as cloud computing within next 4 to 5 years. Earlier, we never thought about cloud computing would be so popular. Every one of us is buying the cloud storage. Our mobile gets filled up. They start saying your Gmail is full, your mobile is full, and you need some storage, and we buy it from the cloud and the Azure or AWS or any computing facility, whichever is giving us the cloud facility. We are taking that facility. The best part about cloud computing is, dear friends, the best part about cloud computing and related to this topic, the best part is we can scale down the operations. When our business is not getting along very well, when our business is slow, we can scale down the operations. And if our business is on the peak, we can scale up the operation. So
Yeah, so before I take up the next slide, I'll ask someone to please tell me if everything is okay, if you're just seeing the changing slides and my voice is audible also. Please. Yes, sir. Total. Yes, sir. Okay, Audible, thank sir. you so much. Yes, sir. Okay, Yes, sir. It's fine. thank you so much. So please put it on the mute button. I will keep checking after every 4, 5 slides so that we know that everything is in order. Please, someone's mic is still on. I would request the recording would get hampered. Yes, sir. Okay, please हेलो put it on a सर mute button. हेलो Yes, हेलो सर yes. हम पीएचडी में एआई सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं सर अभी हिंदी आप में थोड़ा विस्तार से अभी इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लास्ट हाफ आवर में, तो आप कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा हम सेशन कर लेंगे, उसके बाद हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और हिंदी में ही Okay, sir. देंगे, हिंदी उर्दू जैसा आप कहेंगे। और अभी भी सेशन में अगर आप 1-2 लाइन में इसमें ऐड कर दूंगा फिर। हाँ सर, थोड़ा ठीक है, हिंदी में भी कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक, मैं बीच बीच में मैं वो कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक जी। ओके, सो the word is we want to come together. हमें सबको साथ मिलके एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है अब जो सक्सेसफुल भी हो और जहां सब चीजें सस्टेनेबल हो। और ये सस्टेनेबिलिटी जो आएगी, द सस्टेनेबिलिटी वुड कम थ्रू the use of technology. Now, this technology, whether it's AI or blockchain or IoT, as we'll discuss, we'll have very wonderful slides here and we will discuss. और उसमें ये दिखेगा, we'll see that it would be very essential for us. विश्व गुरु बनना है तो हमें ये फॉलो करना होगा। और ये स्लाइड्स आपके पास होंगी, यू कैन गेट रीड देम अगेन एंड अगेन, दे आर वेरी हैंडी। और डिस्कशन सेशन में आप जो क्वेश्चन करोगे हम उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। So if you look on the screen, advancement in the field of machine learning and deep learning are creating a paradigm shift in almost all sectors of technological industries with the use in applications like Siri, AlphaGo, Alexa and all. So मैंने पहले भी बोला था, Alexa हर घर में है, आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख रहे हो। You look at news and when you look at the news, आप वेदर फोरकास्टिंग आप देखो, कल से ये पता था कि कल आज बारिश होगी एंड इट्स रेनिंग वेरी हैवीली इन गाजियाबाद, नोएडा। तो ये सब कैसे आ रहा है? सेंसर से डेटा जा रहा है, दैट डेटा इज गोइंग फॉर एआई एल्गोरिथम्स और एआई एल्गोरिथम्स इन पे काम कर रहे हैं एंड गिविंग यू द प्रेडिक्शन। तो वो हफ्ते भर की प्रेडिक्शन आपके मोबाइल पर सामने आ जाती है। सो एवरीवन इज लुकिंग एट दैट प्रेडिक्शन। तो ये आ रहा है कि बारिश होगी, अपना छाता अपने साथ रखिए, अपनी कार में ये चीजें रखिए। तो this is the thing that we are getting. ये चीज आप कितने में खरीद सकते हो? then we can go for cheaper things through the use of internet, through the use of AI. तो ये सब चीजें हैं जो हमारी लाइफ को आसान बना रही हैं। तो if we want the ease in our life, it's going to really ease things up. ऐसा नहीं है जैसे कहा जा रहा है कि जॉब्स चली जाएंगी, सब कुछ होगा। भाई, this is just to increase the expertise. If you master these, you have to master these now. So you have to be familiar with them, and if you are familiar, sky is the limit for you. You can go anywhere, you can go to the any limit of the world. You are doing, never before we have seen such great research taking place. Right now you see so many SCI papers are being published, so many journals are being done, so many patents, copyrights, incubation centers. तो ये सब क्या है? ये सब आपकी मेहनत है और ये मेहनत आप कॉलेजेस में लगा रहे हो। और आप लोग अच्छे टीचर्स तो थे ही थे, पढ़ा रहे थे, इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च में भी कंट्रीब्यूट करो टू द कंट्री, देन दैट गिव्स अस दैट एक्स्ट्रा एज। तो यही है इंडिया का लोहा लोग क्यों मानते हैं। व्हाई डू दे टेक अस वेरी सीरियसली व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस? दिस इज बिकॉज वी आर रियली इंटेलिजेंट पीपल एंड बट वी नीड द यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी। तो कमिंग बैक, ये डायग्राम देखिएगा और इसमें आप देखें तो ये आजकल का सिनेरियो है। लेफ्ट साइड से देखिएगा, प्लीज लुक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा लॉट्स ऑफ डेटा इज जनरेटेड, फेसबुक से, ट्विटर से, हमारे नेटफ्लिक्स से, बहुत सारे सोशल मीडिया कंपनीज का डेटा होता है, कंपनीज में एक फंक्शनिंग हो रही है उसका डेटा है। तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अ लॉट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। Unstructured and structured data is there. Then that data is stored. One step ahead, now if you have lots and lots of data, तो उस डेटा को you will store somewhere, आप कहीं स्टोर करोगे उसको। तो ये डेटा आप स्टोर करोगे using AI technologies, using Hadoop, using so many facilities are there. So we are storing the data properly.
MongoDB ले लें, Hadoop ले लें। जब डेटा स्टोर कर लिया, डेटा जनरेट हुआ, डेटा स्टोर कर लिया, एंड वंस यू हैव स्टोर्ड द डेटा, नाउ अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रोग्रामिंग। नाउ द प्रोग्रामिंग विल कम इनटू द पिक्चर। तो प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जो डेटा है उसके ऊपर हम प्रोग्राम चलाएंगे। ये एआई एल्गोरिथम्स होंगे। You see there processing of data using CPU, GPU and AI algorithms to detect patterns. तो जब ये एल्गोरिथम्स चलते हैं, रन करते हैं डेटा के ऊपर, तो वो हमको बताते हैं actionable insights, predictive signals are generated on the right hand side you see. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने I want to see यही क्लास लेते हैं हम, we are around 150 students sitting there, हम 150 स्टूडेंट ये कोर्स कर रहे हैं। मैंने आपका डेटा ले रखा है, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कैमरा से सपोज ले रहा हूँ, एवरीवन इज ऑन द कैमरा, आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वो डेटा मेरे पास आया, मैंने उसको प्रोसेस किया, उसके ऊपर अपना एआई एल्गोरिथम चलाया, ठीक है, डेटा आपका आ रहा है मेरे पास, आई एम रनिंग माय एआई एल्गोरिथम, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन really I can tell you whether you were happy with my session. तो सेंटिमेंट एनालिसिस, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, वेदर आप मेरी क्लास से खुश थे या नहीं थे। ऐसे ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बता सकते हो, आप उससे नेता से खुश हैं, आप उससे नहीं हैं, एंड दिस सेंटिमेंट एनालिसिस इज बीइंग यूज्ड इन इलेक्शंस एंड ऑल्सो एआई has been used in to win elections. If you remember data science, AI, Delhi elections, Kejriwal ji have been making use of very good AI algorithms. Modi ji has been making very good use of data science and algorithms in national elections and winning elections after elections. तो कहने का मतलब ये है, what I want to reiterate is we are getting the data, there's lots of data in the world, and on that data our algorithms are operating, and once they are operating on those algorithms, they are giving us the solution. So someone's mic is on, please, I would request that would really put some hindrance in recording खराब होगी, तो प्लीज अपने को जिसका भी माइक म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें। Vandana ma'am, please switch off your mic. Vandana ma'am. So thank you so much for helping me out. So let us talk about, we are talking about artificial intelligence. अब ये देखते हैं कि ठीक है, ये AI हो कहाँ रहा है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। हम देखें तो बैंकिंग में we are making use of AI in banking, in finance, gaming. teaching. Hello. I would request to put the mic on off. Someone's mic is on, please put it on. So Vaji sir, please mic बंद कर ले. thank you. So you see, banking, we are making use of artificial intelligence, and if there is smart banking, we are all moving towards private bank. Why are we moving towards private bank? You go to a bank and they're coming with the tab, they're coming with their applications. You're not using anything there, you're using the tab to enter your data. You're not filling in anything now. Finance, gaming, our kids are playing the games, PUBG and all, they are all making use of artificial intelligence. Autonomous vehicles, marketing, as I said, there are so many advertisements coming. Just think about some product and you see the entire list of that product is there on the screen. How is it possible? This is because of AI algorithms. इसको recommender systems कहते हैं। तो वो system recommend करता है हमारे लिए। Punjab, Haryana, these are agricultural lands. And India is one of those agricultural country where 60% of the people, they rely on agriculture. So if we can make use of these technologies, if we can have sustainable solution, find sustainable solutions for agriculture, I think India would be in a much better position. We would be able to give that MSP that the farmers are wanting for, and the leaders are promising the double of their salary, double of their income. Then you see there are ride-sharing applications. We are all using Uber. You are all making use of Ola. We are making use of different ride-sharing applications. How is it possible to share that? They are making use of these technologies, chatbots. You go to a website and something will pop up on the screen, और वो आपसे कहेगा, may I help you? तो वो आप उसके ऊपर अपनी query लिखते हो,
तो वो बंदा अब आपसे कॉल पे बात नहीं करता, वो चैट पे आपको सब कुछ आपको इंस्ट्रक्ट करता है। तो द चैट बोट्स हैव बीन डिजाइन। हेल्थ केयर इज वन फील्ड जहां पर सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। कोरोना में हमने देखा वी वर स्ट्रगलिंग फॉर बेड्स, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर ऑक्सीजन, उसके बाद चीजें पिकअप हुई हैं। लेट्स सी कोई और इमरजेंसीज आती हैं तो उसमें हम कैसे हैंडल करते हैं। बट वन थिंग वी कैन से, थोड़ा सा उसके बाद से वी हैव वर्कड हार्ड ऑन दोज perfection of those algorithms. Hospitals have worked hard on it, and AI powered predictions and all. So if you see, these are the applications of AI जो real life में हमको applications दिख रही हैं, यहाँ यहाँ इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हम देखेंगे कैसे हम इनको we can take them into the smart city concept. So already these kind of applications of AI are taking place. So coming back to sustainable smart cities. Smart cities are the cities which are smart. Now, smart city doesn't mean we are making use of smartphones, so we are smart. No, it doesn't mean that. When we are talking about smart cities generally means a number of vivid and different sensors collect the data and information to get insights from them and further use them to manage these objects efficiently and with sustainability in mind. तो बेहतर तरह से यूज करने का, जैसे मैंने अभी कहा चंद्रयान की हमने लैंडिंग करी थी, परफेक्ट थी। वहां से एकदम से जैसे ही हमने लैंड किया चंद्रयान पे, वहां से 700 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है मून से हमारे सर्वर्स पर आया। सर्वर्स ने उस बिग डेटा पर काम किया, उसके बाद हमें दुनिया को बताया फिर कि चांद पर ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो 700 टेराबाइट्स ऑफ डेटा, अभी मैं बताता हूँ तो आप सोचोगे कि टेराबाइट्स ऑफ डेटा है क्या। जब आप फ्लॉपी इस्तेमाल करते थे हम सब, वी वर ऑल मेकिंग यूज ऑफ फ्लॉपी ड्राइव्स। तो फ्लॉपीज जो थी वो 1.44 MB स्टोर करती थी। तो वो थी आपकी किलोबाइट्स ऑफ डेटा। तो सबसे पहले केबी आया, किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स आया, तो मैं 10 टू द पावर 3 आया, फिर 10 टू द पावर 6 आया, 10 टू द पावर 9 आया, 10 टू द पावर 12 आया। तो इस तरह से ये जो स्टोरेज पावर जो है ये बढ़ती जाए। तो आप सोचिए 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 12, 15, 18, कितनी बड़ी अमाउंट होगा, कितना बड़ा वो है डेटा है। तो computers can handle this much of data definitely. So smart cities would mean there would be number of different sensors that collect the data and information to get insights from them and further use them to work on that. Let us now these are the paradigms. ये वो हिस्से हैं स्मार्ट सिटी के, ये वो आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके लिए we are गोइंग फॉर इट। क्यों होता है देखिए, वजह ये है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम देखें वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं, इससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम स्टेप्स अभी नहीं लेते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के पीछे नहीं भागते हैं, तो वी विल लैग बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे इन द रेस। और जो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं हम उसमें वी विल लैग बिहाइंड इन दैट। तो बेटर पार्ट हियर इज, अगर अभी हमें मौका मिला है 2030 तक वही सस्टेनेबिलिटी गोल्स को हासिल करने का, यूएन सबकी हेल्प कर रहा है, तो व्हाई नॉट मेक द फुल यूज ऑफ इट। कोरोना ने हमें थोड़ा सा पीछे किया, 2-3 साल इस रेस में हम पीछे हुए, सब लोग, दुनिया पीछे हुई, बट स्टिल वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ इट। So inadequate infrastructure is one of the force which is driving the smart city paradigm. एक वजह यह है कि inadequate infrastructure था, growing urbanization, अब लोग जो है शहर बड़े होते जा रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड एनर्जी, अब जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा जो कंजम्पशन है स्मार्ट ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेस का वो बढ़ रहा है। अगर हम नहीं करेंगे इनका एआई और इन सब का इस्तेमाल, ब्लॉकचेन और इन सब का, ब्लॉकचेन से क्या होगा, आपका डेटा हैक नहीं हो सकता, डेटा को कोई फ्रॉडस्टर बीच में नहीं ले, तो हमारा डेटा जो है वो हमेशा एक्यूरेट और कंट्रोल्ड रहेगा। लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स के बारे में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। स्मार्ट बिल्डिंग्स वुड मीन आई stepped out of my car, my door opens up immediately on its own, and the door opens up, then the electricity, the bulbs, they illuminate, bulbs जलने शुरू हो जाते हैं, AC ऑन हो जाता है, और लाइट्स हमारे हिसाब से, आंखों के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो ये सब स्मार्ट बिल्डिंग्स आजकल
बन रही हैं, और ये मैंने नोएडा और एनसीआर में भी मैंने देखा, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, वी आर हैविंग स्मार्ट बिल्डिंग्स नाउ, एंड IIT's group is there which is helping these infrastructure companies to come up with a solution. So these are the forces which are driving the smart city paradigm: inadequate infrastructure, growing urbanization, smart grid, energy has to be properly utilized, smart buildings, logistic solutions we want. So a smart city real-time implementation would mean, if we want a sustainable smart city, these are the few factors which applications, factors, as you say, we'll have to really look into. Healthcare. Healthcare is one of those prime requirement. Healthcare किसी भी country का अगर आप चाहते हो वो country progress करे, वो country आगे रहे, उस country के बारे में लोग बात करें, तो हेल्थ केयर इज वन ऑफ दैट फील्ड। जहाँ हेल्थ केयर के लिए आप देखो तो डिफरेंट कंट्री से लोग अब इंडिया आते हैं, एम्स, आपके इन सब हॉस्पिटल्स में, दे आर कमिंग फ्रॉम outside countries, they're coming from abroad, because you must be AIIMS and all, they're giving wonderful healthcare facilities. So healthcare is one thing where we are focusing on, our governments are focusing on it, different states are focusing on it. If you go to Odisha, they have wonderful facility. Odisha is, as we say, the first smart city tag has gone to Odisha. Odisha has few cities there which have the smart city tag, complete smart city tag. Fine. So then smart parking is one of the facility that our cities should have. Parking is a very big problem in India, in a small cities, and then in Delhi, NCR, and different adjoining Punjab. Smart parking is the need of the hour, because parking, I have seen this in MIT University. I went there to take one of the practical exam. तो जब भी वहाँ जाओ MIT में, बहुत अच्छी बात ये है कि उस गेट जाने से पहले वो कहता है गेट नंबर 5 पे मत जाइए सर, the parking is already full. So we get a message instantly from the sensors, and then we move to a different gate, let's say gate number 2, and there we would find that there's a parking space. So hospitals, if they have this kind of facility, different buildings, automation buildings and all, if government offices, they have this smart parking, we will be having a wonderful solution. हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर हम स्मार्ट पार्किंग, और स्मार्ट पार्किंग आएगी कैसे? डेफिनेटली एआई इज गोइंग टू हेल्प। एल्गोरिथम्स काम करेंगे सेंसर्स के साथ, सेंसर्स के ऊपर काम करेंगे, सेंसर डेटा के ऊपर काम करेंगे, और एल्गोरिथम हमको एफिशिएंसी दे। एआई एल्गोरिथम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंसी के लिए आपको अगर चाहिए तो एआई एल्गोरिथम्स हैं, अगर आपको ट्रस्ट के लिए चाहिए तो ब्लॉकचेन उसके साथ लगा दीजिए, ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हैकर्स आपके डेटा को, एक्यूरेसी को, आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएंगे, चोरी नहीं कर पाएंगे आपके रिसोर्सेज की। तो अगर एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी, इन सबको हम मिला दें, ये दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी का आज जमाना है। हम ये नहीं होता हम एक टेक्नोलॉजी को पढ़ें दूसरे को हम ना पढ़ें, हम अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्नोलॉजी तो पढ़ाएं और बोले नहीं भाई इसने में तुम्हारा काम हो गया, अब आगे नहीं पढ़ना हो। थिंग्स हैव चेंज। जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल में जहां आपको जिंदगी भर पढ़ना है, ऐसे ही हम देख रहे हैं हमें आजकल हर चीज को पढ़ना है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में है, ऐसे एआई के साथ में है, हमें लगातार पढ़ते रहना है। दी एल्गोरिथम्स आर चेंजिंग, एल्गोरिथम्स आर बिकमिंग एफिशिएंट डे बाय डे, तो सॉल्यूशंस डिफरेंट आ रहे हैं। तो आप देखते हो एक बड़ा सा, अगर हम सोच के देखें, कंप्यूटर सिस्टम जब आए थे तो बिल्कुल कमरे के बड़े बराबर होते थे, बड़े कमरे के बराबर मेन फ्रेम सिस्टम्स आए थे। उसके बाद ये छोटे से डेस्कटॉप आ गए, डेस्कटॉप के बाद में अब आपके पाम टॉप्स आ गए। अब देखो आप तो अपने मोबाइल पर ही यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सेंड योर मेल्स, यू कैन सेंड योर रिज्यूमे, यू कैन डू योर एक्सेल शीट, आप एक्सेल शीट का काम भी कर सकते हो, और ये स्मार्टली काम कर रहे हैं। तो इट्स द स्मार्ट सोल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। हेल्थ केयर 2 बार आ गया है स्क्रीन पे। तो एक तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है स्मार्ट सिटी के लिए। अगर आपको सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी बनानी है अपनी, और आपको कहना है इट्स रियल सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी, तो उसका हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी पार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा होना है। देन स्मार्ट लाइटिंग, we'll talk about this. यह ऐसे फैसिलिटी है, जैसे आप देखो तो हम देखते हैं स्ट्रीट्स में देयर आर लाइटिंग्स एंड ऑल। जैसे ही अंधेरा हुआ, सेंसर्स ने अंधेरा डिटेक्ट किया, द सेंसर्स टेक केयर ऑफ दैट, इट्स गेटिंग डार्कर, एंड इफ इट्स गेटिंग डार्कर वो उसको ऑन कर देंगे।
तो स्मार्ट लाइटिंग अगर हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अभी हमारे बच्चों ने, आई एम फ्रॉम जामिया हमदर्द, एंड हमारे स्टूडेंट्स ने हमारी लोकेलिटीज को इल्यूमिनेट किया यूजिंग स्मार्ट लाइटिंग। तो उससे क्या हुआ, लोकल पार्षर्स एंड ऑल, लोकल काउंसलर्स एंड ऑल, दे हेल्प इन दैट अप्रोच एंड दे गिव मनी टू द स्टूडेंट्स। सो अगर हम एज टीचर्स, अगर हम कोलैबोरेट करें विद नगर निगम, विद काउंसलर्स एंड ऑल, एंड इफ वी टेल, look, my students are going to solve this problem for you for smart lighting. So my students are going to solve your problem for waste management. My students are going to solve you the problem for dustbin, waste management and all. So if you talk like this, it's really going to help the cause, it's going to help the country, it's going to make things sustainable. सब चीजें sustainable लगेंगी। तो यकीन माने इस स्मार्ट लाइटिंग पे हमारे 8-10 बच्चे हैं, इन्होंने काम किया, एंड दे गॉट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, स्मार्ट पार्किंग पे, स्मार्ट लाइटिंग पे, smart pollution monitoring system. Another important part is India is a very big country, 140 crores. If you talk about, there are crops being burnt in the villages, and then there is a smog in Delhi. And so pollution is a big problem in India. So if we can use AI solutions, if we can put it with other technologies, जैसे अभी ये लोग लाए थे, कुछ guns लाए थे, pollution guns, ये solution नहीं निकला. So let us work on, try and find solutions, a smart pollution monitoring system. So that will put, then as I said, dustbin or ye smart waste management, it is missing from here. I think the healthcare part was missing, it's twice. So if we can give solution to a locality, if we can start from the locality, हम अपने एरिया से स्टार्ट करें, अपने काउंसलर से बात करें कि हमारे बच्चे ये कर सकते हैं, और look, we can do it because हम लोग कर रहे हैं, और ये टिट्स एंड बिट्स में कर रहे हैं। अगर हम ये टिट्स एंड बिट्स एक जगह कर लें, एक जगह इनको इकट्ठा कर लें और करें, तो रियली वी विल बी इन अ पोजीशन, जो हम विश गुरु बनने की ड्रीम तो पूरी होगी, एंड वी विल बी इन अ वेरी बेटर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो दीज आर द स्मार्ट सिटी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस। ऐसा नहीं है इन पे काम नहीं हो रहा, दे आर ऑल फिक्टिशियस, ये सारे काम चल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज हुए, एमएनआरस हुए, हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हम सबके बच्चे अब ये काम कर रहे हैं। मैक्सिमम पेटेंट्स अब आ रहे हैं, कॉपीराइट्स अब आ रहे हैं, हमारे पास में पब्लिकेशंस हो रही हैं, एससीआईज आ रहे हैं, हम कैश के थ्रू, हम सब लोग कैश भरते हैं, ठीक है, कैश फाइल हमें भरनी है, रिफ्रेशर भी हम शायद इसीलिए करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो व्हाई नॉट डिजाइन स्मॉल थिंग्स एंड देन मेक इट लाइक अ have a patent for it, have a copyright for it. So it I think 15,000 rupees we can get the patent published, Indian patent. If we want the grant, it's about 50,000 we have to spend to get the grant and all. But let me tell you, this is a very good process to do. Once you do it, let me tell you, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होगे जब अपने रिज्यूमे में आप पेटेंट्स डालोगे, कॉपीराइट्स डालोगे, जो बुक्स आप लिख रहे हो वो डालोगे। अगर if I talk about myself, I have about 42 patents with me, which are all there on the internet. You can search my name, Dr. Ehtaram Raza Khan. You will see there are 22 books, there are 42 patents, there are about 175 research papers, out of which 51 are SCI papers, SCI's papers, and there are Scopus papers, and then there are 185 plus invited talks, keynote addresses, invited talks. So I've been a regular at Doordarshan. मैं दूरदर्शन पे मेरा अभी प्रोग्राम आया था 16 जुलाई में, it was on AI and blockchain. Then अभी आकाशवाणी में 2-3 दिन पहले आया था मेरा प्रोग्राम on AI and blockchain. So ये सब चीजें हैं जिनके बारे में if we share our experiences with each other. Purpose of meeting today is not I can lecture you. You are all wonderful teachers. So many of you must be net qualified and all much intelligent than me. But here the part here is I'm here to share my experiences. Let's say I have worked 26 years. I've been teaching since 1996 when there wasn't anyone available to teach AI. I taught AI for the first time in 1998. So it's about talking about the expertise that we carry. It's about talking about our experiences, about collaborations. You collaborate with the world. It will really help you. Write to someone, try and search someone
मैचिंग योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पर आप चेक करिए, अगर आपके प्रोफाइल से कोई मैच करता बंदा है, उसको एक लाइन लिख दीजिए, सर आई वांट टू वर्क अंडर यू, सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। देखिए ये एक मॉडेस्ट लाइन आपके लिए, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक, और वो बंदा आपको फौरन रिप्लाई करेगा, यस व्हाई नॉट, लेट अस वर्क टुगेदर। और फिर आप देखो तो आप साथ में कोलैबोरेशन में रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो। आप अब बहुत सारे पेपर्स हम लोग साथ में लिख रहे हैं, इसके साथ में पेटेंट्स में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आई गॉट 2 Saudi projects in which I have Indian students also being enrolled, Indian teachers also being enrolled into those. So that is because of the kind of collaborations, the kind of associations that we develop. और ये एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। अगर आप जाओगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, आप देखो अगर ऐड भी निकलता है तो उसमें वो कहते हैं एसोसिएट के लिए आप, ठीक है आपके 5 साल तो आपने एपी पे काम किया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पे, इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट पे भी काम किया हुआ हो, तो आप देखिए तो अब प्रोजेक्ट आपका 5 लाख मिनिमम कहते हैं, वो 5 लाख के प्रोजेक्ट पे काम भी किया हुआ हो। तो सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं बचा है, वी हैव टू डू सो मच. So to become sustainable for the world and sustainable for education, we should now start looking for options to work outside also. अपने कॉलेजेस में तो हम करते हैं, आपस में हम लोग कोऑपरेट करते हैं, हम लोग पूल भी करते हैं, बट लेट अस टॉक अबाउट आउटसाइड, वी कोलैबोरेट. आई गिव यू द टिप्स अबाउट दैट. So I've told you, you can search me on the internet and you can ping me up. I'll definitely be sharing the resources, whatever you would need. So these were the smart city real-time implementations. So if we look at it, I'm only reading out the red part of it. There's so much in this slide. I'll pass on the slides. आप लोग इनको पढ़ सकते हो बाद में. अगर आप red part को देखें तो currently smart cities deploy Internet of Things, IoT. We are talking about IoT, Internet of Things, Internet of Drones, cloud computing, edge computing, and other technologies. So इस सब मिलाकर हम चीजें बनाते हैं. आप देखो तो ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल है. सिर्फ शादी वगैरह में नहीं है, ड्रोन से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं और हम खुश हैं, हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स. वी आर मेकिंग यूज ऑफ ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स हम दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं, हम बॉर्डर पे हम यूज कर रहे हैं इसका. तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आते हैं जब आप इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करोगे, एआई का इस्तेमाल करोगे, आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप दुश्मन कंट्रीज के जो स्टेप्स हैं उनको आप देख सकते हो. यू कैन लुक एट दोज स्टेप्स. वो हमारे में इंकर्शन करने वाले हैं, हम उनको पीछे ढकेल सकते हैं, वी कैन काउंटर देम अप. तो अभी आप देखो तो रियल एग्जाम्पल अगर हम दें तो हमारे में G20 हुआ था इंडिया में, और G20 में एवरीवन वाज थिंकिंग इट शुड गेट अलोंग नाइसली, अच्छे से निकल जाए, कोई घटना उठना ना हो. तो इसके लिए आपने देखा था दिल्ली में डेफिनेट इन एवरी न्यूज़पेपर वी वर गेटिंग द रिपोर्ट, there are intelligent cameras being installed, AI cameras being installed. So what do we mean by AI cameras? Now these are AI cameras, definitely have their intelligence. So everything went on very smoothly, सब कुछ अच्छे से हो गया, G20 was successful. तो आपने वहां पे ऑटोमेटिक सर्वेलेंस लाए, आप एक सस्टेनेबल सर्वेलेंस था वहां पे जिसके ऊपर हमने काम किया. तो दिस इज all very important. So transformative applications of AI in smart cities. If you read the red line only, AI system when implemented within the smart city use cases can help in growth and management with traffic monitoring. So this is one field where, as I said, parking की तो बात हम कर ही रहे थे, अगर हम traffic monitoring भी कर पाए through the use of cameras, through the use of AI algorithms, कि यहाँ पर डेटा, मैंने कहा कि एमिटी के इस गेट पर जाके वो कहता है पार्किंग इज फुल, डेटा आपके पास सेंसर पे आ गया आपकी कार के डैशबोर्ड पे और आपके मोबाइल में, देन आप डिफरेंट रूट ले लेते हो. वैसे ही आपके शहर का आ जाता है. आपने सब लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो. गूगल मैप का क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको बताता है दिस रूट हैव सम कंजेशन अहेड, दिस रूट इज नाउ फ्री, दिस इज द फास्टेस्ट रूट. तो आपको वो इंफॉर्मेशन देता रहता है जिससे कि आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल सकते हो. डिस्पोजल मैनेजमेंट, किसी का माइक ऑन है प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट. थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद आप लोग की डिस्कशन ही करेंगे हम लोग इन सब पे. ट्रैफिक मॉनिटरिंग, डिस्पोजेबल मैनेजमेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट है, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स टू मेक सिटीज मोर एंड मोर सिक्योर
and livable. तो जैसे मैंने कहा अभी हमारा G20 हुआ था, तो सिक्योरिटी सिस्टम्स को एनहांस किया गया था यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे someone's mic is on, please switch it off. So if we, whatever we are talking about, if we look at, these are the applications of AI in smart cities. Advanced security cameras, जो मैंने कहा AI cameras की बात कर रहे थे अभी G20 में, कि we are going to be talking about security, AI security. So advanced security cameras, advanced surveillance systems, जो drones वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, advanced flying objects, smart waste management is another solution, जो smart waste, जो waste को जो है वो let me give this example also. This is smart waste management. We have dustbins now, and every university, every college has been asked to adopt some villages. आपके colleges में भी आपने adopt किए होंगे कुछ villages, और कुछ हर यूनिवर्सिटी को ये टास्क दिया गया है जिसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें नैक में जाता है, तो नैक A+, वो कॉलेजेस हैं जो इनमें वाकई काम कर रहे हैं और फिर वो प्रूफ भी उसके दे रहे हैं. तो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट विलेजेस में जो है वो डस्टबिन्स बांटे गए. उन डस्टबिन्स में सेंसर्स थे. जैसी डेटा आपका डस्टबिन पूरा हो जाता है, द सेंसर बीप्स एंड इट सेंड्स द मैसेज टू द Nagar Nigam office that please send the truck, and the truck will come and pick up the garbage and empty that dustbin and go away. So it's saving your crucial time. तो क्या हो रहा है इसमें, पूरे दिन आपका कूड़ा नहीं पड़ा रहेगा, आपका टाइमली हो रहा है. उसके बाद में जब पूरा हो जा रहा है वो, तो सेंसर्स उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. फेस डिटेक्शन कैमरास, ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, चाहे लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आपका बड़े शहरों में हो. हमें we are struggling with it. So if we can use this AI part of it, if we can make sustainable AI solutions, we can use help it in our transportation also. होगा क्या, ट्रैफिक मैनेजमेंट आसानी से होगा. ट्रैफिक मैनेजमेंट आसानी से होगा एल्गोरिथम से, तो आपका जैम नहीं लगेगा. जैम नहीं लगेगा तो आपका टाइम बचेगा. टाइम नहीं बचेगा, आपके पास टाइम बचेगा तो you can do constructive jobs and all. So we are बेसिकली टारगेटिंग दिस पार्ट. तो विश्वगुरु बनने के लिए जैसा हम देखते हैं और बाहर कंट्रीज में जहां आपको जैम्स नहीं दिख रहे हैं, आपको लगातार मूविंग ट्रैफिक दिखता है, तो हमें उस तरह का एम हम लेके चल रहे हैं कि वी कैन हैव द सॉल्यूशन ऑफ दैट काइंड. फेस डिटेक्शन कैमरास आर देयर, सो they are detecting. So if there is any untoward incident in the city, then we are going for face detection cameras, and then they are using these cameras to detect the faces. इन faces को check करने के बाद फिर वो अपनी database से check करते हैं कि ये किसी criminal से तो match नहीं कर रहा है. अगर किसी उसका है तो criminal का है तो he is being rounded up and all. So these are all applications of AI in sustainable smart cities. तो security, advanced security system. आप security चाहोगे, everyone wants security, everyone wants peace. हमारे बच्चे कॉलेज गए होते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल शांत रहे और बच्चे सेफली घर आ जाएं, हम लोग सेफली घर आ जाए. तो कोई भी नहीं चाहता कि प्रॉब्लम हो कहीं पे. सो सर्वेलेंस शुड बी वेरी स्ट्रांग, सिक्योरिटी कैमरास शुड बी स्ट्रांग, वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी वेरी गुड. गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए. देन सफाई होनी चाहिए तो डेफिनेटली इट्स वी आर लुकिंग फॉर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट. मुश्किल नहीं है. Contact the Nagar Nigam Parshad and then say we can give a solution. जैसे मैंने कहा, we are adopting villages. तो हमने उन villages में जाकर हम उन villages में हम डस्टबिन्स बांट रहे हैं. उसके अलावा हम और भी इस तरह की लॉजिस्टिक्स हमने प्लान की हैं कि जिससे वहां पर लाइफ उन विलेजेस में जो हमने अडॉप्ट किए हैं आसान हो गई है. लाइफ आसान हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ आसान हुआ है, जिससे उन विलेजेस ने हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया. उसके बाद उन लोगों ने दे हैव स्पोकन वेरी हाईली ऑफ इट. सो ऑन फेसबुक एंड ऑल, इट्स ऑल विजिबल देयर वेयर देयर आर हैप्पी फेसेस. सेंटिमेंट एनालिसिस हम लोगों ने निकाला उन विलेजेस का एआई एल्गोरिथम से. तो सेंटिमेंट एनालिसिस वाज के दे आर हैप्पी. तो दैट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप मूविंग अहेड कि जिनके लिए हम काम करें वो लोग आपके वर्क को जो है वो प्रेज करें, बोले नहीं द वर्क हैज बीन डन. सो इट एड्स अप टू एवरीथिंग. अच्छा शहर होगा,
अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, अच्छी एजुकेशन सिस्टम होंगे, अच्छी सब कुछ, हर एवरीवन विल टॉक highly about you. So these are the advanced security cameras and surveillance systems. So this is one of the very important aspects which we just discussed. अभी हमने बात भी इस पर करी थी, किसी भी एक अच्छे शहर में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और सर्वेलेंस होना चाहिए, और वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ इट कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता. इफ यू लुक एट इट इन कंट्रीज वेयर अमेरिका और इजराइल एंड ऑल, नो वन कैन अटैक देम. अभी हुआ इसराइल में, लेकिन उससे पहले अभी तक देखा तो दे वर एबल टू कैप्चर इवन द ड्रोन, इवन द रॉकेट्स, दे कॉट होल्ड ऑफ इट इन बिटवीन. तो हमें ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए जिससे हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारी कंट्रीमैन हैं, दे शुड बी सिक्योर. ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत मैटर करेगी इसमें, और इसको बहुत ज्यादा हमें पिक करना है. इंक्रीजिंग ट्रैफिक फ्लोज नाउडेज पॉइंट्स आउट एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर स्मार्ट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड. ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है. लास्ट पैराग्राफ अगर लेके लाइन देखें, application of AI for development of intelligent transport system is essential. Intelligent, using AI algorithms, because it can solve problems like traffic congestion, overcrowding, environmental degradation, etc. in smart cities. जैम नहीं लगेगा तो CO2 वगैरह जो एमिट होती है व्हीकल से, वो एमिट कम होगी तो हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो बचा रहेगा, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, हमारा जो CO2 और इनका एमिशंस हैं दे विल बी कंट्रोल्ड. सो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिस पे बहुत सारा अभी हमें काम करना है, और हमें कोलैबोरेशन भी करना है विद द आउटसाइड फोर्सेस, आउटसाइड universities and the countries. Autonomous flying objects for overhead vision. So we are talking about drones and all. ड्रोन्स ने बहुत हेल्प करी है, सिक्योरिटी बेटर हुई है, ड्रोन्स बहुत हेल्प करते हैं. सिर्फ ये अब सिर्फ शादी वादी में फोटोज खींचने के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटी में हमारे फंक्शंस को कवर करने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी में बहुत हेल्प कर रहा है. और एआई के एल्गोरिथम जब इसके डेटा को, सेंसर्स डेटा आता है उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशंस देता है. ऐसी हम अभी बात कर रहे थे, बस थोड़ी देर में हम फिनिश करके फिर क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के लेंगे. फेस डिटेक्शन कैमरास फॉर पब्लिक सेफ्टी. तो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो फेस डिटेक्शन कैमरास जो लगे हुए हैं, ये कैमरास बहुत हेल्प होते हैं. अभी ये सिर्फ आपको लगता है ये हमारे चालान काट लेते हैं, हमारे घर पे चालान पहुंचने लग गए हैं और ऑल, स्पीड ब्रेक करेंगे तो ये होगा. तो उसके अलावा हम इन चीजों में भी हो सकता है कोई गलत चीज हो जाए तो उन कैमरास की हेल्प ली जाती है. क्राइम पेट्रोल वगैरह पे आप लोग देखते हो, you're looking at crime patrol and then you're looking at like they are in every episode of crime patrol or any program like that, they are talking about artificial intelligence, they're talking about detection, face detection techniques. That is the help that we are getting from AI. Smart waste management and disposal system, as I said, we are adopting villages, हम villages को adopt कर रहे हैं, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स अब इन पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द रिकॉग्निशन. इनको सर्टिफिकेट के साथ साथ दे आर इवन गेटिंग, द कंपनीज आर अट्रैक्टिंग, कॉलिंग देम फॉर दिस. लेट मी टेल यू, वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी दिल्ली इलेक्शंस हुए थे तो उसके ऊपर डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए थे, तो उनके डैशबोर्ड्स को दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग इलेक्शन. सो ये अच्छा अचीवमेंट होता है जब आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए. और पुलिस सिस्टम ने पूरे इलेक्शन टाइम में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक के स्टैट्स देखने के लिए, पोलिंग स्टैट्स देखने के लिए वो डैशबोर्ड्स का लगातार इस्तेमाल किया. तो इट गिव्स अस ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमारे ही बच्चे ये काम कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं. पुलिस फिर उसमें दिल्ली पुलिस बुलाकर उनको सर्टिफिकेट्स दे रही है, उनके साथ पिक्स ले रही है, तो वी फील प्राउड. और जब वो स्टूडेंट्स आके कॉलेज हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग को टैग करते हैं उसमें, वी आर थैंकफुल टू यू सर. तो इससे बड़ा काम हो नहीं सकता. तो दिस इज द काइंड ऑफ सेवा दैट वी आर डूइंग टू द कंट्री, जिसको समाज सेवा भी कहते हैं. तो दीज आर ऑल collaborations and seva kind of a thing. So benefits of AI in smart city development. So what would be the benefit then? इतने पैसे हम लगा भी रहे हैं, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, 10 सिटी बनानी है, 100 सिटी बनानी है, we have to make so many smart cities. What are the benefits then? There should be some benefits. So optimized energy and water management. ऑप्टिमाइज जब करते हैं तो आपकी डिमांड जो है वो उसको हम बेटर तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं.
ऑप्टिमाइज एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्टेज अब नहीं होगा, ऑप्टिमाइज एनर्जी होगी तो सबके पास पहुंचेगी। जैसा हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, फैसिलिटी फॉर ऑल, सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। तो जब आप एआई के थ्रू ऑप्टिमाइज करोगे कंजम्पशन को और ये सब चीजों को, तो सबके पास पहुंचेगी। ऐसा नहीं है एक गांव में लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है और एक गांव में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और एक गांव में पानी लगातार आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। Now it would be distributed through a power grid. The electricity is coming through the power grid distribution, and then water management also is intelligent water management. Then we talked about more accessible transport system, जिसकी हम बात कर रहे थे कि transportation system जो है वो उसको better होना होगा, तो अब better होता जा रहा है through the use of these algorithms. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जैसे कहा कि अगर आपका जैम्स नहीं लगेंगे, CO2 एमिशंस कम होंगे, तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो 21st में वी हैव अ सेशन विद यू, जहाँ हम एआई का रोल इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे एनवायरनमेंट साइंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बारे में हम उस दिन बात करेंगे। आज हमने एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया और उस दिन हम बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल भी हम इसको लेकर जाएंगे और हम बताएंगे कि किस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमने सोल्यूशन को पाया भी है। सो दैट प्रेजेंटेशन यू वुड फाइंड आज का बहुत बच्चों वाला सा आपको दिखेगा, तो उस दिन हमको एक स्टैंड उठाएंगे और थोड़ा सा हम तेज बढ़ेंगे इसमें। Advanced security and safety of the public. So these are all benefits that we're getting. Our country becomes secure, our city becomes secure, safety is there, positive impact on environment, environment सुधर रहा है, more accessible transport system better हो रहा है। आप देखो तो अब आप सेल्फ शेयरिंग जो है राइड्स, उनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो एआई के थ्रू। क्या हो रहा है, आप यहाँ से बुक करो, कहीं पे आप उतर जाओ, तो आपको अपनी कार कैरी नहीं करनी पूरे टाइम, आप यूबर ले लें, आप ओला ले लें, अदर एप्लीकेशंस आर देयर, अदर राइड शेयरिंग फैसिलिटीज आर आल्सो देयर। अब शहर शहर के बीच में भी स्टार्ट हो गई है इंटरसिटी, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट, सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ऑन पेपर दिख रहा है, हमें स्क्रीन पे दिख रहा है सर जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है? यस, इट इज हैपनिंग. It is happening now in our neighborhood. It's happening in our locality. It's happening in our country. It's happening in the world. So as we started, it's sustainability for all. A small country like Uganda should not be discriminated. It should be treated like America. So here we are talking about sustainability goals. Everyone should have sustainable education. When we say sustainable education, everyone should have sustainable education, sustainable health care. सबको रिसोर्सेज आपके प्रॉपर मिलने चाहिए, चाहे फिर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सो दिस इज ऑल दैट इज गोइंग टू बी कमिंग इनटू द सिस्टम. तो 5 मिनट्स और लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. It's 11:47. So good impact on the environment. One of the most essential benefit of a smart city and AI integration is the fact that we will be able to control the CO2 emission. तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो पोल्यूशन जो है कम होगा. Smart cities and AI with energy efficient and eco-friendly, better traffic, waste management, smart lights and appliances will help us to reduce pollution. Pollution कम होगा, which will help us in making environment less polluted and will conserve energy. So obviously sustainable smart cities, they will conserve the energy which you can use in future, the energy which is so precious for us, the energy which we can keep for our kids. ये नहीं है कि दुनिया 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में रिसोर्सेज ही ना हो हमारे बच्चों के लिए. तो बात ये है कि सबको कंजर्व करना ताकि अगले 100 साल चले. फिर उनकी जिम्मेदार होगी कि वो सस्टेनेबिलिटी निकालें अगले 100 साल के लिए. तो these are the steps that we are working on. तो 21st का जो सेशन होगा वहाँ में एनवायरमेंट साइंस पे बहुत सारा फोकस है हमारा एआई का. देखिए कैसे हम उसको हैंडल करेंगे. ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट, तो पावर को हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, वाटर को हम मैनेज कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एंड मेकिंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स विल मेक देम मोर एफिशिएंट एंड स्मार्टर. Greater accessibility to transport. AI-powered smart transportation system will help in reducing fuel consumption. When fuel consumption is going to be reduced, and waste emission by providing the shortest and the fastest route available. फ्यूल बचाओगे आज की दुनिया में, हम टाइम में हम फ्यूल बचाएंगे तो हमारे बच्चों के काम आएगा, आगे आने वाली जनरेशन से काम आएगा. अगर हम अभी सब फूक देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डूम्सडे अहेड.
So smart use cases help in good transportation in required time. So if we can have good transportation in required time, it is a perfect solution. Then advanced safety and security of the public. AI powered smart cities are equipped with high-end, I talked about AI cameras also. G20 के time में smart cameras लगे थे, तो high-end smart cameras which help in 24/7 surveillance of the areas under the scanner. तो आजकल स्कूल कॉलेजेस के आप देख रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैमरेज लगे होंगे, गेट्स पे लगे होंगे, तो दे आर फॉर proper having a proper discipline in the college, in the university, no untoward incident take place, and the security is there. So facial recognition upgrade the cameras to help recognize people who disobey the law or enter restricted areas. आपके फेसेस को डिटेक्ट कर सकता है AI एल्गोरिथम्स, उन फेसेस को अब डेटाबेस से मैच कर ले सकता है, और आपको अगले दिन न्यूज़पेपर में आपका आ सकता है you have broken this law. So be prepared, please don't get into any such act जहां पर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े. So then finally, towards the end, this is almost the end of the session. तो AI स्मार्ट सिटी चैलेंजेस क्या हैं, इतना पैसा हम लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट इज अ वेरी बिग फैक्टर. बहुत सारा पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न भी होगा, क्योंकि इतना सारा डेटा आ रहा है सेंसर्स के थ्रू, तो हमारा डेटा को कोई जो है वो चोरी तो नहीं कर लेगा, हमारे डेटा को कोई मिसयूज तो नहीं करेगा. डीप फेक जैसी आजकल चीजें चल रही हैं, जहां कोई आपकी वॉइस में बोलकर, आपका पैटर्न, सपोज वीडियो पड़ा हुआ है, आपका ऑडियो पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, और आपके हैकर्स जो हैं वो डीप फेक का यूज करके आपका मॉडल बना के आपके घर वालों को कॉल कर सकते हैं. ऐसे कॉल बहुत आ रहे हैं आजकल कि आपका बेटे को हमने जेल में जाने वाला है आपका बेटा, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, या फिर आपका बॉस जो है वो हमारे कब्जे में है, आप इसको इतना पैसा ट्रांसफर कर दें, या फिर आपने अभी ये वाला वायलेट किया है, आपका बैंडविड्थ पे कुछ गलत काम हो रहा है, या आपके कुरियर में कुछ गलत है. तो इस तरह की चीजें जो हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं. ये एक चैलेंज है हमारे लिए कि अगर हम इस चीज का इतना विस्तार कर रहे हैं, इस चीज का इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं AI का, और अपनी डेटा को सार्वजनिक कर रहे हैं, हम इतना पब्लिक कर रहे हैं, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा. तो इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है. आपकी सिक्योरिटी के लिए नए नए प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, और उसके ऊपर अभी काम चल रहा है. वी आर इन अ स्टेज जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं. अभी तो डीप फेक के लिए वो ये कहते हैं कि कंपनीज को वार्न कर दिया गया है मिनिस्टर के, कि वो ये कह रहे हैं कि आपने व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको 48 आवर्स में उस कंपनी को अगर कोई डीप फेक वीडियो अपलोड किया है तो उसको डाउन साइज करना, उसको हटाना है. तो रिस्क ऑफ सोशलाइजेशन है. सो दीज आर द चैलेंजेस. कॉस्ट बहुत आ सकती है आपके प्रोजेक्ट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कोलैबोरेशन करना है, कोलैबोरेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड और कंट्रीज के साथ में, तो वो कॉस्ट जो है वो मैनेज हो सकती है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, रिस्क ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे. सोशलाइजेशन क्या है सर? इज अ बिग सोल्यूशन. अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चंस करें. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं. ये लास्ट स्लाइड है, फिर आई विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर. You have been all very patient in listening to the session. I'm really thankful. A smart city is the future of our cities. A smart city concept is being adopted and implemented by most countries worldwide. AI will help the smart city engineers, organizers, caretakers to check and maintain these cities and their use cases. So we'll be having a different world altogether if we can find it. Thank you very much. I'll just stop the sharing and just need 2 minutes from you, and then I'll come face to face on the camera. Just 2 minutes. I'm just stopping the sharing part. Just 2 minutes. Yes, sir. I find so many hands being raised. Santosh Kumar ji, I can see your hand being raised. Gyanendra ji, I'll come to you next. Thank you very much, sir.
अविनाश have जी, told everything all in all about the smart city. अविनाश And जी, एक yes, सेकेंड, I अविनाश think जी, that most of the getting benefited through your lecture. I want to raise. ये संतोष जी, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है, थोड़ा सा माइक किसी का चल रहा था। जी बताइए, संतोष जी पूछें। संतोष जी संतोष, अनम्यूट करके पूछिए फिर से प्लीज। हाँ प्लीज। Sir, my question is that it is said that whenever the people of the country will not be smart, how the means of the smart city? Sir, how you will clarify it? सर, वी आर ऑल वेरी स्मार्ट पीपल। Yeah, हम we are. इतने But, सर हम इतने स्मार्ट होते हैं, मैं संतोष जी बताऊं तो आप ये देखिए, नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, लेकिन अगर आप देखें तो रिक्शा पुलर्स और ये टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑल, वो उसी तरह से फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन जैसे हम कर रहे हैं। दे आर यूजिंग इट इन अ बेटर वे। So if the facilities are there, if we are giving the facility, everyone will make use of it. So as I said, we are all wonderful teachers from wonderful universities. हमारी responsibility इस time ये है कि हमें काम करना है उस एम की तरफ जो हमें ले जाए नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि थोड़ा सा शुरू में लगता है वी आर वर्किंग ऑन दीज फैसिलिटीज, टिट्स एंड बिट्स में हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई वेस्ट मैनेजमेंट पे कर लेते हैं, स्मार्ट पार्किंग पे कर ले रहे हैं। अगर हम मिलके काम करें, अगर मैं संतोष जी और मैं मिलके काम करें, तो हम अपने एरियाज में हम लोग काफी जा सकते हैं। अगर मैं आपके बारे में, अगर आपके सब्जेक्ट में जाके करूंगा तो आई विल टेक टाइम, बट अगर आप मुझे समझाओगे अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, देन आई कैन गिव यू एआई सॉल्यूशन टू इट। yes, sir. Thank you very much. जी संतोष जी। ज्ञानेंद्र जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम स्मार्ट सिटीज में एआई की बात कर रहे हैं। जी सर। और सर मैं अभी मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ, यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। जी जी। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें स्पेसिफिकली वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, जी जी। तो जितने भी मैन होल्स का नेटवर्क है वो फाइनली रामगंगा रिवर में जाके डंप हो जा रहा है। जी। जो वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन का पार्ट है उसमें तो हम इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, पर अगर हम वेस्ट को लास्ट में ले जाके किसी रिवर बॉडी में या फिर किसी स्ट्रीम में डंप कर दे रहे हैं विदाउट बीइंग ट्रीटेड, या उसको हम किसी तरह से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो पूरा जो हमारा डिस्कशन है अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सर फेलियर की तरफ चला जा रहा है पूरा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। जी नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम जाके फिर डंप कर दे रहे हैं, और डंप करना ही मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए सॉल्यूशंस अब हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर हमें इन लोग के साथ में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में, दे विल हैव टू गिव अस द सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास देखिए जो है, हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, हम वही वाले एल्गोरिथम्स बना पाएंगे, हम वही आपको पाथ बता सकते हैं कि ये पाथ है, ये पाथ लोगे, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सेंसर्स आपके जो है ब्लिंक कर जाएंगे और सब कुछ करेंगे। बट वी शुड बी गिवन समवेयर, जिससे सीएनजी वगैरह बनाते हैं तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो सीएनजी बनाने में काम आए, और एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो हमें इसमें साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक पूरा एक ग्रुप बन सकता है जो ये सॉल्यूशन हमें दे सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रॉ प्रोडक्ट है, कौन सा वेस्ट है, किस चीज में ये रॉ प्रोडक्ट की तरह काम आ सकता है। तो जैसे हमने बहुत अच्छा काम किया था शीला दीक्षित जी ने एक टाइम में, जब उन्होंने सीएनजी लाए थे। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स अपार्ट, वी शुड बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। मेरा कहना यह है, अभी क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीजें जो हैं वो रुक जा रही हैं। कोई स्टेट में कोई गवर्नमेंट होती है, कोई होता है, एंड दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। So the cooperation will have to come from the administrators, and administrators will have to find a group, और वो ग्रुप जो होगा वो साइंटिस्ट भी होंगे, उसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी होंगे, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो इनमें बहुत सारा काम करती हैं। तो अभी एनजीओस पे भी थोड़ा सा कुछ वो लगा था, ब्रेक वगैरह लगा हुआ है, अदरवाइज दीज एनजीओस वर आल्सो हेल्पिंग अस to have this conservation of resources and all. Your question is very genuine, Gyanendra ji, and I'll put this forward to the other forums also. सर एक चीज और पूछ सकता हूँ? जी सर प्लीज। सर जो हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लाइवलीहुड सर काफी सस्टेनेबल होते हैं अगर हम इन्वायरमेंट के टर्म्स में देखें जी। और एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी वही चीज अचीव करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना उनके लाइवलीहुड्स को हम प्रमोट करें इन अ लार्जर वे।
Definitely, sir. This will have to be the government policies. This will have to come under that. तो हम आप बैठ के सर यहाँ पे नहीं कर सकते उसको. Now the ministers, related ministers should be taking a stock of that. हम उनको हेल्प कर सकते हैं. वो हमको जैसे भी हम लोग को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं, हम सॉल्यूशंस अपने सिस्टम पे बैठ के दे रहे हैं. बट वी आर रेडी टू हेल्प. हम लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा कि इवन सऊदी अरब प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने हमें हायर किया और हमने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी लिया उसमें. तो ये है कि अगर वो लोग हमें इस तरह से हायर करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प. अदरवाइज ये मिनिस्ट्रीज को जाकर इस चीज पे करना होगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. जी संतोष जी. सर अक्सर कर जब हम सर एआई के बारे में पढ़ते हैं तो एक हमारे सामने इशू ये आता है कि एआई को जैसे जैसे रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ेगी. तो सर हम कैसे कॉम्बिनेशन इसमें रख सकते हैं? सर जब कंप्यूटर्स आए थे डॉक्टर संतोष, जब कंप्यूटर्स आए थे हम तब भी बहुत डरते थे जी. सबका चला जाएगा. 90s का टाइम था जब मंडल वाला टाइम था, कंप्यूटर्स आ रहे थे और ये था, तब भी हम डरते थे. लेकिन उसके बाद आप देखें तो वी हैव गॉट ओवर इट. तो बात अपनी स्किल्स को बढ़ाने की है. बात ये है कि वी शुड बी रेजिंग आवर स्किल्स. हाथ खड़े करने से देखिए सोल्यूशन निकलेगा नहीं. अगर हम हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे ना तो फिर सोल्यूशन नहीं है. वी शुड बी मेकिंग आवरसेल्व्स मोर स्किल्ड. आप देखो हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो दैट इज अगेन सस्टेनेबिलिटी. तो संतोष जी मेरा कहना तो ये है, एआई अगर हमारी लाइफ को बेटर कर सकता है जी. तो वो बेटरमेंट जो है वो हमें ज्यादा है नुकसान से. जी. Sir, myself, Dr. Ajay Kushwaha. First of all, जी. sir, very informative session. सर एक शुक्रिया. समस्या ये है कि सर 2000 में हमारा आईटी एक्ट बना, 2009 में हमने उसमें क्रिमिनल पार्ट ऐड किया क्राइम को जी, डील करने के लिए. जी बट सर. सर 2009 से लेके 2025 तक 24 तक हम लोग आ गए हैं. और एग्जैक्टली जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, जैसे अगर हम ट्रोजन्स की बात करें, ट्रोजन हॉर्स की बात करें, या चैट बोट की बात करें, या चैट रूम की बात करें, या की लॉगर्स की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एज ऑफ क्राइम. और जब हमारा डेटा जो है बिग डेटा में ऐड हो जाएगा, हमारी प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगी, तो सर उस समय ये क्राइम का सिनेरियो जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. और लेजिस्लेशन जो है वो अभी तक इसमें कोई आईटी सेक्टर में कोई चेंजेस के लिए कोई सेंट्रलाइज एक्ट अभी प्रमोट कर नहीं रही है. तो सर वो कंडीशन और हौच पौच या मतलब कन्फ्लिक्ट वाली नहीं हो जाएगी? सर फायदे ज्यादा हैं इस चीज के. असल में ये है. अच्छा एक चीज और पूछता हूँ आपसे. सर आप आईटी साइड से हो? सर साइबर लॉ पढ़ाता हूँ सर. लॉ जो आपकी लैंग्वेज से वो लग रहा है. देखें डी फेक के बारे में इनके पास कोई क्लियर अभी वो स्ट्रेटजी नहीं है. उन्होंने कहा 48 आवर्स में आपको उसको हटाना है, वीडियो को या ऑडियो जो भी है. लेकिन आप देखें तो आप तो साइबर लॉज पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्शंस में अभी भी कुछ है, लेकिन डाइवर्स जो लॉज हैं, जो आईटी लॉज हैं, उसमें जैसे आपने किसी और की आइडेंटिटी पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, तो उन पे लॉज हैं, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है. और दूसरा ये है कि जो डेटा है वो इंटरनेशनल सर्वर्स पे है, तो वहां से आते आते इतना टाइम लगता है कि वो चीजें फिर बेकार हो जाती हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने ही जो लेजिस्लेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा. जी सर, सेक्शन 43 इधर हैंडल करता है. उसके बाद 66 का जो कुछ पार्ट है वो है. उसके बाद जी सर, उसके बाद तो सर एकदम क्लियर हो जाता है. बेसिकली कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आईटी एक्ट इन्होंने बनाया था. अच्छा जी, इसमें हमें अपनी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है. मतलब ये है कि हमें अपनी जो कुछ आदतें ऐसी करनी है जो लोग को प्रोपोगेट भी करना है. सर बिल्कुल सर, लेकिन जब हम सर बिल्कुल जी सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर. हम लोग इतने एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन आपको अगर 4 बार बोलना पड़ रहा है प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक, तो सर जब हम लोग इतने लिटरेट पर्सन होके इस तरह के ब्लंडर्स कर सकते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन हु कैन नॉट हैंडल देयर मोबाइल फोन. उन्हें बेसिकली सिक्योरिटी चीजों से और इन सारी चीजों से कोई कंसर्न नहीं होता है. सर इसीलिए हम उनको बार बार कहते हैं अपना पासवर्ड शेयर मत करो, पासवर्ड चेंज करते रहो, टेबल पे बैठो फैमिली के साथ में, तो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में उनको डिस्कस करिए ताकि सबको पता चलता रहे. बड़े बूढ़ों को भी गाइड करो. तो अभी तो हमारी जो सेफ्टी है वो ये समझाने में एक दूसरे को ज्यादा है. देखिए अभी लॉज आने में तो मुझे अभी भी लगता है प्रोटोकॉल्स पे भी जैसा काम चल रहा है
टाइम लगेगा, जी सर। लेकिन जब तक हमें थोड़ा काम ये करना पड़ेगा कि हमें लिटरेट करना पड़ेगा दुनिया को। तो सर वो हम काम सभी हमारा फेसबुक आप पे सभी का लगातार है। फोटो, इंस्टा पे लगातार फोटो डालते हैं, वही एक सबसे फोटो बड़ा इतनी डर है सारी सर। इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इन सबसे बड़ा सारी चीजों डर से सर, बिल्कुल सबसे बड़ा अवेयर है। डर यही है सर, सबसे बड़ा डर यही है जो मैंने डी फेक में भी कहा कि कोई भी आपको जो है आपकी आवाज को, आपकी इमेज को, आपके वीडियो को कर सकता है सुपर इम्पोज, और इस पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सर एक बात बताएं, हम डर कर हम अपना चीज छोड़ भी नहीं सकते। तो दुनिया से compete करना है, दुनिया के साथ हमें चलना है, नंबर 1 भी बनना है, टारगेट हमारा जी है। सर। तो डेफिनेटली सर इफ वी आर गेटिंग 90% बेनिफिट, 10% नुकसान भी है, जी but सर। still our machinery, our government and our states are doing a good job. अभी जल्दी जल्दी से केसेस भी ट्रैक करने शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने। जी सर। नहीं तो जैम तारा देखने के बाद तो ऐसा लगा था सर कि जैसे सब कुछ ही उल्टा उल्टा है। तो ये है बहुत डेंजरस चीजें हैं, बट देन आई कैन अश्योर के आने वाले टाइम में थिंग्स विल बी बेटर। Yes sir, we hope that. Thanks. यस Yes, sir. We hope really. Hello. यस सर। Hello. Sir, myself Dr. Sir, Shankar Pramanik. uh, Can I ask simple प्लीज question? Simple question. शिवराम। Sir, first of all, your presentation is very nice, very informative, and most of the time you discuss about the privacy and security. But what about the biometry that install in different colleges, universities, and private sectors for their attendance? If जी there सर। any chance to leak the information, fingerprints, etc., from biometry, or the cloud server of the biometry is operated by third party in some cases. यस सर। सर ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर कोई बंदा आपके उसको हैंडल कर रहा है डेटा और छोड़कर जाता है, वो भी डेटा को बेच सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही हैं। तो इट्स अ सिक्योर सिस्टम बेसिकली, लेकिन अगर क्लाउड पर पड़ा है, हैकर्स कैन हैक इट। अगर कोई बंदा उसको बेचना भी चाहता है तो सो मच ऑफ ब्रीच हो रहे हैं, इतना डेटा को आपका ब्रीच किया जा रहा है, हेल्थ केयर डेटा को और इन सबको, कॉलेज डेटा को। तो थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, बट स्टिल वी फाइंड, डोंट यू फाइंड द थिंग्स, ऑटोमेटेड थिंग्स, द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस वेरी नॉर्मली। अटेंडेंस आपके बच्चों की जल्दी लग रही है, फास्ट काम हो रहा है, आप सब कुछ कन्वर्जिंग उस मोड में कर रहे हो। तो आई फाइंड, मुझे जो नहीं पर्सनली सर, मैं लगता है, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बच्चों को बात नहीं कर Yes, रहा मैं, जी जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। Employees. जी जी फिर से एक बार बताएं। एम्प्लॉइज के वो जो हमारा पहले जो खाता सिस्टम था ना, उसमें तो हम अटेंडेंस दे रहे थे, तो बायोमेट्रिक का क्या जरूरत हो गया? सर गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट तो सेल्फी भी मांग रही है आपसे कि आप इस जगह पे हो तो आप सेल्फी भी लेके भेजो। तो सर ये चीजें तो पॉलिसीज में आ रही है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में। यू कैन नॉट ओवर रूल देम। द एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके चांसलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अभी नगर निगम वगैरह दिल्ली में, ये गाजियाबाद वाले में, दे हैव टू सेंड सेल्फीज रेगुलरली। आप काम पर आए हो, एक बार सुबह में, एक बार दोपहर, शाम। इवन स्कूल टीचर्स, दे आर सेंडिंग सेल्फीज अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद भी तो सर ये होता है, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ भी हैं ऐसे जो पंच करते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, फिर शाम में आके फिर पंच कर देते हैं। तो सर मिसयूज करने का तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक कंपल्शन है जो यूजीसी की तरफ से भी सर आया है फॉर और सर डाटा बायोमेट्रिक। बेचने की जो डाटा बेचने की बात है, तो सर गूगल डाटा बेच के इतनी कंपनी बन गई है। वही है बिल्कुल सर, वो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो सर ये है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रहा है या यूजीसी बना रहा है, एआईसीटी बना रहा है, देन वी कैन नॉट जस्ट अपोज दोस पॉलिसीज। हम लोग को करना है, इसलिए बायोमेट्रिक चला था। अदरवाइज देखिए, जो ऑनेस्ट पर्सन होगा, ही विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट। वो 9 बजे ऑफिस आएगा, 5 बजे ऑफिस से निकलेगा। Yes. और अगर कोई बंदा ऑनेस्ट नहीं होगा, XYZ, तो सर आप कितने भी बायोमेट्रिक लगा लो, वो उसमें भी सोल्यूशन निकाल लेगा, वो उससे भी निकल जाएगा सिस्टम से। तो एक दो जगह मैंने देखा सर, कैमरे भी लगे हुए हैं ऊपर, जहाँ बायोमेट्रिक इंस्टॉल्ड है वहां पे कैमरे भी लगा दिए हैं। तो कैमरे लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रस्ट लेवल जो है वो डेफिसिट है। तो सर ये दुनिया है, इट्स वर्ल्ड वेयर अगर 90% लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, if 90% of us are honest and doing our work properly, I think the country will prosper. And that's what we want. Every one of us wants. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. सर हमें Okay, Pranam. Sir, but कुछ drawbacks भी तो इसके। गुड आफ्टरनून सर। जी मैम। सर कुछ इसका डिसएडवांटेज ज्यादा है ऐसा लगता है, जैसे क्योंकि काफी कुछ देखिए हैक कर जाता है हर चीजें। जी जी। तो मतलब
मैम देखिए प्रोफेसर डेजी मैम, यस सर। देखिए आप ये देखिए कि चीजें आपकी आसान भी तो कितनी हुई हैं। आप सिस्टम पे बैठे हो, हम लोग शायद 200 किलोमीटर दूर हैं, एंड वी आर स्टिल एबल टू टेक लेक्चर्स। कोरोना टाइम में वी वर एबल टू टेक लेक्चर्स। तो आज हम इंटीग्रेटेड लर्निंग यूज कर रहे हैं, मूक्स का हम मतलब वी आर मेकिंग यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इन आईसीटी आल्सो। तो आप ये देखिए फायदे कितने हैं। चलिए ये सब छोड़िए मैम, आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लॉकचेन लगा दो अपने प्रोडक्ट्स पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप फीड कर दो, तो आपका कोई भी बंदा आपकी रिसर्च को कॉपी नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती थी प्लेगरिज्म और इस सब की, तो मैम दोस प्रॉब्लम्स आर गॉन। तो आप ये देखिए आपके लिए आसानी भी कितनी हो रही है। नहीं आसानी तो खैर है, बट सर ये जितनी आसानी भी है थोड़ा बहुत उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं काफी, जो नॉर्मल लाइफ में आप लिखते हैं। मैम इसमें यही कहते हैं सब के, मतलब हमारे भी गुरुजी यही कहते थे मैम, पहले थोड़े हर चीज के साथ थोड़ा नुकसान भी होता है। जी सर। तो लेट अस बियर विद इट। हो सकता है आने वाले टाइम में वी कैन वर्क और ये चीजें भी कम हो जाएं। ओके सर, यस सर, थैंक यू सो मच। It has been wonderful talking to you all. Really, a very intelligent audience. And I always maintain that the people from humanities and all are always very intelligent. They're much intelligent than us. So definitely when we interact in refresher courses and all, I've been taking regular sessions. So I love taking sessions. I also attend because I too need CAS grades. So definitely I too attend these courses at times at Milia or HRDC, Sonipat and all. So it's wonderful meeting you at a platform where we can at least have a discussion. कोई और कुछ पूछ रहा है? देवेंद्र जी आप कुछ पूछ रहे थे? यस सर। यस सर, आई वांट टू। हेलो जी हाँ सर, हेलो सर। पीएचडी में एआई का प्रयोग बता दीजिए सर। पीएचडी में एआई का प्रयोग, पीएचडी में एआई का प्रयोग कैसे करें सर? आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं भाई बोदान भाई? सर हम सोशलॉजी सर। तो आपने लिटरेचर रिव्यू वगैरह जब आप करोगे, यस सर, तो आप यूज कर रहे हैं आजकल बहुत सारे टूल्स आप यूज कर रहे हैं। जैसे सर कैसे करें, हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे थे तो इसलिए हम हाँ एडवाइस ले रहे थे आपसे, मतलब एआई का प्रयोग कैसे करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा चैट जीपीटी यूज करिए, यही सब यूज करिए जो उसके वो हैं। ऑब्वियसली देयर आर टूल्स व्हिच आर हेल्पिंग यू, तो आप उनको अपना एक बार कुछ चीजें डाउनलोड करके उसको पढ़िए। तो लिटरेचर रिव्यू आपके लिए वो आसान कर रहे हैं टूल्स। सर ग्रामरली में ये अपनी चीजों को प्लेगरिज्म और जो इनके रेपिटेशन है उन सारी चीजों को, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल एरर वगैरह ठीक कर सकते हैं। बहुत है, मेंटली वगैरह ये सब बहुत आपकी हेल्प जी कर सर, रहे हैं। आप कनेक्ट हो सकते हो, आप मैं आपको मेल आईडी वगैरह दे दूंगा, यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड। अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी सोशियोलॉजी में, डेफिनेटली आई वुड लव इफ आई कैन कोलैबोरेट विद यू बोधान जी, क्योंकि ये चीजें तो सेल्फ लर्निंग है। हम लोग रोज यही चीजें लर्न कर रहे हैं और हम डिफरेंट स्ट्रीम्स में जा जाके कर रहे हैं। वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन योर मॉडल। अगर कोई मॉडल बनाना हो आपको, आप बताइएगा तो वी डेवलप इट। जान मोहम्मद आप हाथ उठा रहे थे, निशा मैम आप उठा रहे थे। दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। जी निशा मैम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन सर। सर वन मोर क्वेश्चन कि सर हम लोग जैसे बहुत हैं पोल्यूशन को लेके, बट हम लोग जब कोई ब्रॉड लेवल पे कोई काम करते हैं, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम अक्सर डिस्पोजल का यूज करते हैं, तो इज वेरी हार्मफुल। बट हम लोग इसका कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि डिस्पोजल का हम यूज कम से कम करें, जो हमारे पोल्यूशन को जो इंक्रीज कर रहा है। तो सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या सलूशन है कि हम डिस्पोजल का यूज कम से कम करें और चीजें थोड़ा सिस्टमेटिक हों। मैम देखिए, आप कोई इवेंट भी कर रहे हो तो इवन हम अगर प्लेट्स वगैरह भी हम रोड्स पर ही फेंक रहे हैं, तो वो आदतें हम लोगों ने बहुत वो कर रखी हैं, जिससे अच्छे से अच्छा सिस्टम भी जो है वो, अगर आप डस्टबिन में नहीं डाल के आप उसको सड़क पे ही डालते रहोगे तो वो सब चीजें गंदगी जुड़ती रहेगी मैम। डस्टबिन तक तो सेंसर्स लग चुके हैं, डस्टबिन तक अब उनको वैन्स में भी लग चुके हैं जी। तो काफी हद तक सफाई बढ़ी है। लेकिन सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग नहीं वो तो सर ठीक है, बट हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको यूज ही ना करें, इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे हमें प्लास्टिक की ग्लासेस यूज करें या स्पून यूज करें जो डिस्ट्रॉयबल नहीं है, जो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
आप बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात कर रहे हो? के बारे में मैम बात कर रही हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जी, बायो वाले मैम, इसके बारे में हम बात करेंगे 21st में। बहुत बड़ा सेशन है 21st में, हम इसी के बारे में मैम एनवायरनमेंट के ऊपर ही बात करेंगे पूरी। ओके, थैंक यू उसमें सर। हम एआई का ही सोल्यूशन देंगे। जान भाई, आप लास्ट क्वेश्चन लें हाँ प्लीज। जी 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 सर, थैंक यू। हाँ, ओके मैम, जान भाई बताएं। सर मुझे ये छोटा जी सर, मैं थोड़ा सा डाउट है सर, उसे क्लियर कर जी, दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड आईओटी? एआई आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने की टेक्नोलॉजी। आईओटी आपके सेंसर्स हैं। जैसे आपने लगा दिया एक गमले में, आपने क्या किया, आपको गमला, सपोज एक एआईटी सिस्टम बनाया मैंने, और एक गमले में मुझे पानी देना है, तो अब ये मेरा सिस्टम बताएगा मुझे कि आईओटी ये बताएगा कि मॉइस्चर कब कम हो गया, तो वो सेंसर आप पे बीप करेगा, आपको बताएगा। एल्गोरिथम मेरा चल रहा है, एआई एल्गोरिथम, लेकिन वो आईओटी जो सेंसर लगा हुआ है, अब ये सेंसर मिलते हैं नेहरू प्लेस वगैरह में, इन योर मार्केट यू गेट द सेंसर्स। टेम्परेचर बता सकता है आपका, ठीक है, और आपका पानी कम हो रहा है, आपकी डिवाइस में जो है ये हवा कम हो रही है, दे कैन गिव यू, दे कैन टेल यू द सेंस एंड विल टेल यू। सो द एल्गोरिथम्स ऑफ एआई आर डिफरेंट। आईओटी इज अ डिफरेंट फील्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फाइन, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम डिस्कस कर लेंगे अगले बार में, मैं इसको और ले लूंगा। तो आईओटी जो डिवाइसेस हैं, ये इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स हैं, ये सब हैं, ये सब चीजें हैं। जैसे आपकी कार आके रुकी, आपका डोर खुल गया, सेंसर, ये सब हम मॉल्स जाते हैं, डोर अपने आप खुल जाता है, तो वो सब सेंसर्स लगे हुए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, ओवरऑल जो प्रोग्राम उसको हैंडल कर रहा है, वो एआई का है। वो एआई है, वो एआई का है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल। Thank you so Thank you, much. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. Very nice. It's a wonderful session. Thank you, sir. Okay, bye everyone. Thank you, sir. One of the best sessions. I think next session is 12:30.